Hello students, good morning to all of you. Today's we will discuss about anti-dysenteric agent. So first of all we know about what are anti-dysenteric, meaning this dysenteric word what denotes. So this dysenteric word denote the condition of diarrhea, meaning person is suffering from diarrhea, person को दस्त लग जाती है. But in this condition, person suffering from inflammation in the lower gastrointestinal tract. जो पर्सन है डायरिया में तो सिंपल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाता है, बट डिसेंट्री के अंदर, इस डिसेंट्री के अंदर पर्सन का जो लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है. उस स्वेलिंग की वजह से पर्सन कि जो लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली बंद हो जाता है और पर्सन को बहुत ज़्यादा पतले दस्त लग जाते हैं. इवन कभी कभी दस्त के साथ साथ ब्लड भी निकलने लगता है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिसेंट्री, मीनिंग डिसेंट्री के अंदर पर्सन 10 to 15 टाइम्स इन अ डे, एक दिन में पर्सन 10 से 15 बार तक दस्त के लिए जाता है. In this connection, we know about a specific drug in the Ayurveda that is called ipecacuanha. Ipecacuanha that is widely used to treat dysentery. यहाँ पे अपन ipecacuanha है, इसको dysentery को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं. Now, this ipecacuanha is obtained from Syphilis ipecacuanha. That is the scientific name or botanical name of the plant by which we obtain a phytoconstituent that is used to treat dysentery. It means अपन एक ऐसा प्लांट यूज करते हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है इमेटाइन, दैट इज यूज टू ट्रीट dysentery. So biological source of the imetine is Syphilis ipecacuanha. Now we will discuss about the phytoconstituents which are responsible for treatment of the dysentery. dysentery को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं जो इस प्लांट के अंदर प्रेजेंट हैं. दीज आर phenolic alkaloids. Phenolic alkaloids are present in this extract. Cephalin, another compound होता है आपका cephalin. And most important phytoconstituents emetine and dimethyl cyclotrine. These phytoconstituents are responsible for treatment of the dysentery. It means emetine जो है, this emetine phytoconstituents is responsible for treating the dysentery. जो पतले दस्त हो गए हैं मैक्सिमम बच्चों में देखने को मिलते हैं, उसमें अपन क्या करते हैं, इमेक सिरप इज अवेलेबल इन द मार्केट दैट इज यूज्ड बाय द आयुर्वेदाचार्य टू ट्रीट द dysentery condition. Similarly, you see cyclotrine, epicosides, calcium and starch granules are also present in this plant. So we can say that this plant also having a antioxidant property that will be used to protect the internal organs by oxidations. Now we will discuss about the all therapeutic uses of the ipecacuanha. In this connection, this plant extract is used to treat whooping cough. whooping cough जिसको अपन काली खांसी बोलते हैं, बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है. इसमें पर्सन कंटिन्यूस कफिंग करता है, खांसता रहता है. दैट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. whooping cough जो है वो लंग्स का बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एक डिजीज है, whooping cough. दैट इज आल्सो ट्रीटेड विद द ipecacuanha. इट मीन्स ipecacuanha or emetine, syphilis also having a antibacterial property. whooping cough जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फैलता है
अब इस बैक्टीरिया को किल करने का काम अपना क्या करता है, सिफेलिस, इमेटाइन, एल्केलॉइड्स, फिनोलिक जितने भी एल्केलॉइड्स दैट आर प्रेजेंट इन द ईपेक एक्वाना किल द बैक्टीरिया. Similarly, in the case of amoebic dysentery, amoebic meaning amoeba, Entamoeba histolytica that causes the dysentery. यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैरासाइट है जिसका नाम है Entamoeba histolytica that is present in the lower portion of the intestinal tract and causes the dysentery. In this connection we use emetine hydrochloride. Emetine hydrochloride kill the Entamoeba histolytica and treat the dysentery condition. Similarly, this emetine also having a activity of stimulation of the chemoreceptor trigger zone that is present in the brain. अपन लोग जानते हैं कि जो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है CTZ ब्रेन के अंदर मिलता है. इस सेंटर को इमेटाइन हाइड्रोक्लोराइड एक्टिवेट कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से पर्सन को क्या हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है. इट मीन्स व्हेन अ पर्सन टेकिंग अ पॉइजन, मान लो किसी पर्सन ने सुसाइडल पर्पज से, सुसाइड करना है उसके पर्पज से जहर खा लिया था, पॉइजन ले लिया, और अपन को यदि पता चल जाता है कि पर्सन ने पॉइजन ले लिया है, देन वी विल ट्राई टू इंड्यूस द वॉमिटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, उसको उल्टियाँ करवाने का ट्राई करेंगे. तो उल्टियाँ करवाएं कैसे जाएं? सो इन दिस कनेक्शन वी यूज द ईपेक सिरप दैट इंड्यूस द वॉमिटिंग. ये जो इमेटाइन है वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करके पर्सन के लिए वॉमिटिंग इंड्यूस करवाएगी. तो पर्सन ने जो जहर लिया है, पॉइजन लिया है, वह पॉइजन, मैक्सिमम पॉइजन उल्टियों के द्वारा बाहर निकल जाएगा. सिमिलरली दिस इमेटाइन हाइड्रोक्लोराइड आल्सो यूज्ड इन द कोल्ड फॉर्मुलेशंस. बहुत सी आपने देखी हैं सर्दी जुकाम में आने वाली सिरप्स काम में आती हैं, दैट आल्सो कंटेन अ एक्सट्रैक्ट ऑफ द ईपेक एक्वाना. दिस प्लांट आल्सो हैविंग antioxidant property, meaning this plant also having antioxidant property. Due to this property, this plant extract also protect the internal organs like the liver, kidney and lungs. So we can say that Ipec aquana is a plant by which we treat the whooping cough, dysentery and induce the vomiting. After this we study about the antiseptic and disinfectant. अब अपन another topic discuss करते हैं जिसका नाम है antiseptic and disinfectant. So first of all we know about the antiseptic. Antiseptic क्या होते हैं, disinfectant क्या होते हैं. आपने देखा होगा डिटॉल, सेवलॉन खूब यूज़ किया है अपन ने, प्रॉपर अपन रेगुलरली यूज़ करते हैं डिटॉल का, सेवलॉन का. सिमिलरली घर में पोंछा लगाने के लिए लाइजॉल का यूज़ किया जाता है रेगुलरली. तो लाइजॉल और आपकी डिटॉल, सेवलॉन में क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंस. इन दिस कनेक्शन वी नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट. एंटीसेप्टिक ऐसी प्रिपरेशंस हैं जो लिविंग सरफेस, लिविंग टिश्यू से माइक्रोब्स को किल करती हैं और उनको वहाँ से रिमूव करती हैं. इट मीन्स एंटीसेप्टिक्स मे बी डिफाइंड एज अ substances that are used to treat or used to kill or remove the microbes from the living surface like a skin. मान लो कोई पर्सन है, वो स्किन इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, बूंद फॉर्मेशन हो गया स्किन में. अब उस बूंद को क्या करना है, अपन को वॉश करना है. तो देन वी यूज द डिटॉल और सेवलॉन. दीज डिटॉल और सेवलॉन प्रिपरेशंस kill the microbes or remove the microbes from the living surface because skin is the living surface. But when we want to remove the microbes from the non living surface like the floor, जैसे फर्श है, फर्श की सफाई करनी है, नॉन लिविंग है, टेबल है, फर्श, टेबल और अदर इनएनिमेट surfaces that are non livings, और उन नॉन लिविंग सरफेस से अपन को क्या करना है, माइक्रोब्स को रिमूव करना है, किल करना है. Then we use
फिनाइल का यूज करते हैं अपन, लाइजोल का यूज करते हैं, दैट सब्सटेंसेज आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। वो क्या कहलाते हैं अपने? डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं। सो वी कैन से दैट दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड to remove the microbes from the living surface, but disinfectants are used to remove the microbes from non-living surface. In this connection we use 4 natural plant or herbal plants that are first benzoin, second myrrh, नीम बहुत वेल नोन है एंटीसेप्टिक। नीम आपने देखा होगा बैक्टीरिया माइक्रोब्स को किल करता है, नीम का जो एक्सट्रैक्ट है। सिमिलरली टर्मेरिक मीनिंग हल्दी पाउडर बहुत पुराने टाइम से अपन एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते आ रहे हैं। टर्मेरिक पाउडर मीनिंग हल्दी पाउडर को। सो इन 4 प्लांट्स को अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे कि बेंजोइन किस प्लांट से ऑब्टेन होता है, इसमें कौन कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट एक्शंस। बेंजोइन जो है, बेंजोइन इज ऑब्टेन्ड from the Styrax benzoin plant. So we can say this is the biological source. Biological source meaning the phytoconstituents obtained from the roots and rhizomes of the Styrax benzoin. ये आपका बॉटनिकल नेम है। इस साइंटिफिक प्लांट से अपन बेंजोइन लेते हैं, दैट इज द रेजिनस पोर्शन ऑफ द प्लांट and it having a chemical constituents like benzoic acid, well known, cinnamic acid, benzoreginol, sumari, sinotanols, benylines, styrol, styracine and benzaldehyde. These are the phytoconstituents present in the benzoin. In this connection, the most important phytoconstituents are cinnamic acid, benzoreginol, similarly benzaldehyde, sumari, sinotanol. These are the phytoconstituents which are responsible for antiseptic actions. Meaning यहाँ पे जो cinnamic acid है, benzaldehyde है, benzoresinol है, these having a property ऑफ एंटीसेप्टिक मीनिंग माइक्रोब्स को किल करने की जो प्रॉपर्टी है वो बेंजल्डिहाइड, सिन्नामिक एसिड एंड बेंजोरेजिनोल के अंदर है। नाउ वी स्टडी अबाउट द थेराप्यूटिक यूज, ऑल थेराप्यूटिक यूज ऑफ द बेंजोइन। यू कैन सी दैट बेंजोइन इज यूज्ड टू ट्रीट एक्सपेक्टोरेंट, मीनिंग इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कफ, मान लो किसी पर्सन को खांसी हो गई है, कफ आ रहा है, देन वी वांट टू एक्सपेल द कफ फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अपन क्या करते हैं, उस कफ को बाहर निकालना चाहते हैं, तब अपन बेंजोइन को कफ सिरप के अंदर मिला करके लेते हैं। सिमिलरली कार्मिनेटिव, मीनिंग कार्मिनेटिव क्या होते हैं, एक्सपेल द गैसेज फ्रॉम द GIT। जब अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में जो एक्स्ट्रा गैसेज बनती हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फूड के मेटाबॉलिज्म के दौरान, देन उन गैसेज को अपन या तो न्यूट्रलाइज करें या उनको अपन बाहर निकाल दें, एक्सपेल आउट करें। सो इन दिस कंडीशन वी यूज द कार्मिनेटिव्स। अपन क्या करते हैं, कार्मिनेटिव का यूज करते हैं। सो बेंजोइन आल्सो यूज्ड एज ए कार्मिनेटिव एंड वेरी यूजफुल टू एक्सपेल द गैसेज फ्रॉम द GIT। सिमिलरली benzoin also having diuretic activity. Diuretic activity means this drug is used to increase the urine volume. मान लो इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पेरिफेरल एडेमा, मान लो किसी पर्सन के पेशाब की प्रॉब्लम है, पेशाब नहीं कम आ रहा है, धीमे धीमे करके आ रहा है, पर्सन की बॉडी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता जा रहा है पेरिफेरल पोर्शन में, देन we want to remove the body fluids from the peripheral system, then we use the diuretic agent like benzoin. Similarly in this connection we use the benzoin as an antiseptic
एंटीसेप्टिक के रूम में भी यूज करते हैं अपन। दिस ड्रग आल्सो यूज टू ट्रीट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाइक द कफ। कफिंग के दौरान क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन फैल जाता है, उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी अपन बेंजोइन यूज करते हैं, बिकॉज बेंजोइन एक्सपेल द म्यूकस फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सिमिलरली आपने देखा होगा कई इनहेलेशनल प्रिपरेशंस आ रही हैं मार्केट के अंदर, जैसे आपने देखा होगा बिक्स इनहेलेशन। जो बिक्स इनहेलर आ रहा है मार्केट के अंदर, दैट आल्सो कंटेन अ बेंजोइन। इसके अंदर भी क्या रहता है, बेंजोइन रहता है, दैट इज यूज्ड एज ए एक्सपेक्टोरेंट के रूप में अपन काम कर सकते हैं इसमें। और कोल्ड कंडीशन जब हो जाती है, सर्दी जुकाम खांसी लग जाती है, तो अपन इनहेलर का भी यूज़ कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो इन्फ्लामेशन आ गई है, उस इन्फ्लामेशन के दौरान जो स्वेलिंग आ गई है उसको कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। स्मूथ मसल्स को क्या करती हैं, ये कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं। उस वजह से अपनी जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो क्लियर आपकी हो जाती हैं, उसको एयर को पास आउट करने लग जाती हैं। सो वी कैन से दैट वी आल्सो यूज टू ट्रीट द बेंजोइन एज ए upper respiratory tract infection treatment. Now we will study about the myrrh. आपने सुना होगा एक मिर है, that is a plant portion. ओलियोगम रेजिन, जैसे आपने देखा होगा लेटेक्स, हींग भी सुना होगा नाम। Similarly in this connection this is also a oleogum resin, and this resin is obtained from the specific plant that is called Commiphora molmol, meaning this is a biological source. बायोलॉजिकल जो सोर्स है अपना वो है आपका Commiphora molmol. Then now we will study about the chemical constituents or phyto constituents that are responsible for antiseptic action or disinfectant actions of the myrrh. Chemical constituent like alpha beta gamma Commiphora acid. कॉम्मीफोरा मोलमोल प्लांट का नाम था। सिमिलरली जो इसके अंदर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं उनका नाम भी अपन सिमिलर रखते हैं, लाइक अल्फा बीटा गामा कॉम्मीफोरा एसिड। यहाँ पे अपन ने इसका नाम क्या रखा, कॉम्मीफोरा एसिड। सिमिलरली देर आर आल्सो फाउंड टर्पीन्स, टर्पीन्स मोनोसेस्क्विटर्पीन्स आल्सो अवेलेबल इन द मिर। सिमिलरली कुमिनिक एल्डिहाइड, this cuminic aldehyde is responsible for antiseptic action, meaning जो आपका एंटीसेप्टिक एक्शन आ रहा है मिर का, for that here cuminic aldehyde is responsible. फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट कुमिनिक एल्डिहाइड। सिमिलरली आपने देखा इसमें एक यूजिनॉल भी मिलता है, जैसे आपने देखा होगा लौंग, लौंग जो है उसमें यूजिनॉल काफ़ी मात्रा में मिलता है। But in this case, myrrh also contain eugenol. Now, we will discuss about the therapeutic uses. Therapeutic uses meaning इसको अपन मेडिसिनली कहाँ पे यूज कर सकते हैं। Like जो myrrh है that is also used as a antiseptic। मान लो किसी पर्सन को वुंड फॉर्मेशन हो गया है और उसमें से क्या आ रही है, स्मेल आ रही है, तो उसको साफ़ करने के लिए, वहाँ से माइक्रोब्स को रिमूव करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, टिंक्चर ऑफ द मिर की टिंक्चर यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली दिस प्लांट एक्सट्रैक्ट आल्सो यूज्ड इन द फॉर्मुलेशंस ऑफ द माउथ वाश। आपने देखा होगा माउथ वाश आ रहे हैं मार्केट के अंदर, माउथ वाश आल्सो कंटेन मिर एक्सट्रैक्ट। गार्गल्स मीनिंग अपन का जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कोई इन्फेक्शन फैल गई है, जैसे आपने देखा होगा पर्सन को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, गले के अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार खांसी आती है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई गार्गल्स कर लो आप। तो गार्गल्स जो अपन यूज़ करते हैं वो अपन मिर एक्सट्रैक्ट का यूज़ करते हैं, टिंक्चर जिसको बोलते हैं। ये जो टिंक्चर वर्ड है वो एक्सट्रैक्ट के लिए है, एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड फॉर द गार्गल्स किए जाते हैं। उस गार्गल्स की वजह से क्या होता है, इसके अंदर एंटीसेप्टिक एक्शन है, माइक्रोब्स को किल करने की पावर है, तो जो गले के अंदर जो एक्सटर्नल सरफेस पे जो माइक्रोब्स हैं उन सबको किल करने की पावर है इसके अंदर। नाउ दिस प्लांट आल्सो हैविंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मीनिंग प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी। सो दिस प्लांट एक्सट्रैक्ट आल्सो प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन्स लाइक द लीवर,
kidneys, lungs. So we can say that this plant extract also used in the tonic. जो टॉनिक आ रही हैं उनमें भी अपन इसका यूज करते हैं. In this connection we also study about the स्पेसिफिक प्लांट दैट इज कॉल्ड नीम. सभी लोगों ने नीम के बारे में सुना होगा. नीम का जो प्लांट है सब जगह आपको अवेलेबल हो जाएगा. यहाँ पे राजस्थान के अंदर नीम का जो प्लांट है एक स्पेसिफिक प्लांट है जिसका नाम है एजार्डीरेक्टा इंडिका. मीनिंग जो बायोलॉजिकल सोर्स है इसका, बायोलॉजिकल जो सोर्स है नीम का वो क्या है अपना, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ एजार्डीरेक्टा इंडिका. तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन इसका मैक्सिमम क्या पोर्शन यूज करते हैं अपन, लीव्स यूज करते हैं. सिमिलरली अब अपन स्टडी करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं. मीनिंग कौन कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं और इन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट का एज एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या रोल है. सो इन दिस कनेक्शन वी स्टडी अबाउट द निम्बिडीन. आपने देखा होगा नीम की जो पत्तियां होती हैं बहुत कड़वी होती हैं, बिटर. सो दिस बिटरनेस इज रिस्पॉन्सिबल. जो बिटरनेस आ रही है वो एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से आ रही है जिसका नाम है निम्बिडीन. सो निम्बिडीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटरनेस ऑफ द लीव्स ऑफ द नीम. एजार्डीरेक्टा जो इंडिका है, नीम जो है उसकी बिटरनेस के लिए एक स्पेसिफिक फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कॉल्ड निम्बिडीन. उसका नाम क्या है, निम्बिडीन है. सिमिलरली जो एंटीसेप्टिक एक्शन आ रहा है, एंटीसेप्टिक एक्शन आ रहा है वो एंटीसेप्टिक एक्शन क्रिएटेड बाय अनदर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड एजार्डीरेक्टिन. आपने देखा, नाम देखा, एजार्डीरेक्टा इंडिका. तो यहाँ पे जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट आल्सो हैविंग अ सिमिलर नेम दैट इज कॉल्ड एजार्डीरेक्टिन. एजार्डीरेक्टिन. दिस एजार्डीरेक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर antiseptic action, meaning to kill the microbes. Now we will study about the therapeutic uses कि नीम जो है इसके एक्सट्रैक्ट को अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. बहुत सिंपल यूज हैं इसके. दिस प्लांट एक्सट्रैक्ट आल्सो यूज एज ए टॉनिक. आपने देखा हो कई प्रिपरेशन मार्केट में आ रही हैं, टॉनिक आ रही हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं, जो आपका ब्लड प्यूरिफाइंग एजेंट का काम करती हैं. मीनिंग अपन देखें जो टॉनिक होती हैं वो किसी ना किसी रूप में अपनी बॉडी को मेंटेन करने का काम करती हैं. सिमिलरली दिस प्लांट एक्सट्रैक्ट आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल फीवर. आपने देखा हो मलेरिया को ट्रीट नहीं करती है बट मलेरियल जो फीवर आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर जो बढ़ गया है उसको रिड्यूस करने के लिए अपन नीम की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते आए हैं. बिकॉज दिस एक्सट्रैक्ट इज़ बिटर इन नेचर, देयरफॉर इट इज़ लिमिटेड यूज. इसका बहुत लिमिट यूज करते हैं. पर्सन को कड़वापन क्या है, अच्छा नहीं लगता है. फीवर के टाइम वैसे ही मुंह कड़वा कड़वा रहता है. सो इसलिए अपन कॉमनली इसको यूज नहीं करते हैं. बट इन द आयुर्वेदा द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नीम का जो एक्सट्रैक्ट है आल्सो हैविंग टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग द मलेरिया. जो मलेरिया है, मलेरियल फीवर है, उसके दौरान जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है उस बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए वी आल्सो यूज्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ द एजार्डीरेक्टा इंडिका. जो अपना एजार्डीरेक्टा इंडिका है उसको अपन यूज कर सकते हैं. सिमिलरली दिस प्लांट एक्सट्रैक्ट इज़ वेरी यूजफुल टू ट्रीट द स्किन डिसऑर्डर्स. जो आपने देखा होगा जो स्किन है, आपकी त्वचा है, उस त्वचा पे यदि मान लो कोई दाद खाज खुजली हो जाती है, लाइक द एक्जिमा हो गया, दाद खाज खुजली टाइप की परेशानी आ जाती है, स्किन की जो डिजीज हो जाती हैं, तो इन आयुर्वेदा के अंदर जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं वो सिमिलरली बोलते हैं कि नीम की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट से इसको रोजाना दिन में 3 बार साफ करो आप. उसकी वजह से एक्जिमा सही हो जाता है. अल्सर की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है. इट मीन्स दिस ड्रग आल्सो हैविंग अ अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट. सिमिलरली रूमेटिज्म, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जॉइंट प्रॉब्लम. कई पर्सन होते हैं जो जॉइंट पेन की वजह से सफ़र करते हैं. पेन बताते हैं कि हमारे छोटे छोटे जॉइंटों में, इनमें सब में पेन हो रहा है साहब, ड्यू टू द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस इन द जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है जॉइंट के अंदर.
दैट कंडीशन इज कॉल्ड रूमेटिज्म। रूमेटिज्म हो जाता है तो उस रूमेटिज्म को ट्रीट करने के लिए आयुर्वेदाचार्य यूज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द एजाडिरेक्टा इंडिका। सिमिलरली दिस plant extract also having a specific property that is called anthelmintic। मान लो किसी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे क्या पड़ जाते हैं, कीड़े, जिनके नाम होते हैं जैसे कि आप मान लो हेलमिंथ। हेलमिंथ मतलब आपका एस्केरिस। एस्केरिस एक छोटा सा कीड़ा है दैट इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन और लोअर इंटेस्टाइनल पोर्शन ऑफ द चाइल्ड। जो छोटे बच्चे हैं, मिट्टी खाते हैं गांव के अंदर, उन बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। उन कीड़ों को मारने के लिए आयुर्वेदिक सिस्टम और आयुर्वेदाचार्य प्रेस्क्राइब द हर्बल प्रोडक्ट दैट कंटेन द नीम और एजाडिरेक्टा इंडिका एक्सट्रैक्ट। उसके अंदर अपन को देखा होगा आपने, उसके अंदर नीम का एक्सट्रैक्ट मिलता है। दिस एक्सट्रैक्ट हैविंग अ एजाडिरेक्टिन फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट एंड दिस एजाडिरेक्टिन फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट इज वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट द हेलमिंथिक इन्फेक्शंस। मान लो कोई पर्सन है, कोई बच्चा है जिसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए अपन नीम का एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। सिमिलरली दिस प्लांट एक्सट्रैक्ट आल्सो हैविंग इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा कई बार इंसेक्टिसाइड को भगाने के लिए, जो कीड़े मकोड़े हैं उनको भगाने के लिए अपन नीम की पत्तियों का काफ़ी यूज़ करते आए हैं पुराने टाइम से। इट मीन्स जो नीम की पत्तियाँ हैं, नीम के अंदर जो एजाडिरेक्टिन फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स है, दैट इज़ वेरी यूजफुल टू escape the insects. Now we study about the last topic in this connection, turmeric, that is also known as हल्दी पाउडर। आप सभी लोग जानते हैं हल्दी पाउडर के बारे में। हल्दी पाउडर इज रेगुलरली यूज्ड इन द किचन टू प्रिपेयर द वेजिटेबल्स। यू कैन राइट दिस इज कॉल्ड हल्दी पाउडर। दिस इज obtained from the curcuma longa, that is the scientific name of the turmeric, biological source. So this curcuma longa having a antiseptic और disinfectant action। बहुत पुराने टाइम से हल्दी का यूज अपन एंटीसेप्टिक के रूप में करते आ रहे हैं। Now we will discuss about what are the phytoconstituents that are responsible for antiseptic action। इस हल्दी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे क्या फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो एंटीसेप्टिक एक्शन शो करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। दीज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर आल्सो नोन एज फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट like curcumin, well known phytoconstituents present in the turmeric, curcumin. Similarly, curcuminoids, another compounds, volatile oils that also having mono and sesquiterpenes. Similarly, camphene and phelandrine, alpha beta curcumins. So we can say that this curcumin and curcuminoids are responsible for antiseptic or disinfectant properties in the turmeric. आपने देखा होगा पुराने टाइम से ही अपन हल्दी पाउडर को एंटीसेप्टिक के रूप में, जैसे स्किन पे कहीं खरोंच आ गई या मान लो कट लग गया, बहुत पुराने टाइम से ही अपन हल्दी पाउडर यूज़ करते आ रहे हैं। उसकी वजह से अपन का जो स्क्रैच आ गई है स्किन पे, वो जल्दी से घाव भर जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं फैलता है, फंगल इन्फेक्शंस नहीं फैलता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थेराप्यूटिक यूजेज ऑफ द टर्मेरिक। हल्दी पाउडर के क्या क्या यूज हैं वो हैं आपके, जैसे दिस इज यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक, मीनिंग इफ़ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्किन इन्फेक्शन, कोई भी स्किन इन्फेक्शन फैल रहा है स्किन पे, देन वी वॉश आउट द स्किन बाई द टिंचर ऑफ द टर्मेरिक। टर्मेरिक इज आल्सो यूज्ड एज ए कलरिंग एजेंट, येलो कलर रहता है, तो अपन को सपोज करो नेचुरल कलर चाहिए येलो कलर, तो अपन कलरिंग एजेंट के रूप में भी टर्मेरिक का यूज़ करते हैं। टर्मेरिक से अपन येलो कलर डेवलप कर लेते हैं। सिमिलरली दिस टर्मेरिक एक्सट्रैक्ट आल्सो हैविंग अ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा पुराने टाइम से चोट लग जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो अपन हल्दी का यूज़ करते हैं, उस जगह अपन क्या करते हैं, हल्दी पाउडर लगाते हैं। इट मीन्स हल्दी पाउडर आल्सो हैविंग अ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। सिमिलरली दिस
haldi or turmeric powder also having a anti-cancer property. So many types of the cancers are also treat by the haldi powder. Anti-cancer property है इसके अंदर. This topic is finished.